Good morning, student. Welcome back with new topic, Biot-Savart's law. This Biot-Savart's law, it gives the strength of magnetic field at any point due to current element. Current element means a part of the conductor carrying current. Let XY is a current carrying conductor. If we take a part of that conductor, that part of the conductor can be called as current element. And length of that current element is dl. And distance of the point from the element is r. And theta is the angle between current element and position vector. अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो हम बायो-सावर्ट्स लॉ के स्टेटमेंट को लिख सकते हैं एज कि strength of magnetic field at any point due to this current element is represented by dB. dB हम इसलिए लिख रहे हैं because it is not the strength at any point due to whole conductor. It is strength at any point due to a small part of the conductor. It is directly proportional to the current through the element. It is directly proportional to the length of the element AB, and it is also directly proportional to sine of theta, where theta is the angle between element and position vector. And the strength of magnetic field, it is inversely proportional to square of distance of the point from the element. Combining these, we can write dB, it is proportional to I dl sine of theta upon r square. This is the mathematical form of बायो-सावर्ट्स लॉ. बायो-सावर्ट्स लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म है और इस मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करते हुए हम इस लॉ के स्टेटमेंट को लिख सकते हैं. आपको ये पता होना चाहिए dB क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट, I इज द करंट थ्रू द एलिमेंट, और इन कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको पता है तो आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट due to a current element is directly proportional to current through the element, length of the element, sine of angle between element and position vector, and it is inversely proportional to square of distance of the point from the element. तो इस तरह से हम इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं. अगर हम proportional sign हटाएं, then we have to put a constant, and that constant is represented by mu naught upon 4 pi. And value of that constant is equal to 10 raised to power minus 7. अब इसकी यूनिट को आप इस रिलेशन को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. ओके, ये करंट अगर इधर आएगा डिवाइड में आएगा, करंट की यूनिट है एम्पियर, तो इट कैन बी रिटन एज एम्पियर इनवर्स. मीटर एंड मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसिल होकर ये मीटर बचेगा और ये न्यूमरेटर में आएगा, so it can be written as meter. It means the unit of mu naught upon 4 pi is Tesla ampere inverse meter. Okay, and here this term mu naught, it is the permeability of the free space. This is the mathematical form of बायो-सावर्ट्स लॉ. हम इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप ध्यान दें कि we know that length of the element is represented by dl. वैसे तो लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट, और इसको हम नाम दे रहे हैं पोजीशन वेक्टर, व्हिच इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर इस रिलेशन को हमें वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो वी कैन राइट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl. ऐसा करते हैं, इसको r से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और r से डिवाइड भी कर देते हैं, तो r स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर r क्यूब आ जाएगा. ओके, अब आप ध्यान देना, ऑन न्यूमरेटर साइड वी हैव टू वेक्टर्स, dl वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है साइन थीटा. तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हेंस दिस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड can be expressed in vector form as mu naught upon 4 pi I. हम इस पार्ट को लिख सकते हैं as dl cross r, where dl is current element, r is the position vector of the point, upon r cube, where r is distance of the point from the element. And in this way we can express strength of magnetic field in vector form. यहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नजर आ रहा है. इट मींस we can find the direction of this magnetic field intensity, or we can find the direction of this cross product by using right hand screw rule.
किस रूल को हम यूज कर सकते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल स्टेट्स दैट इफ A and B are the two vectors in the plane and if we have to find the cross product of A and B, then place a screw perpendicular to the plane containing A and B. First vector is A. Now rotate that screw from first vector to second. उस screw को rotate करो first से second की तरफ. In this case, the screw will progress or move in inward direction. तो हम बोल सकते हैं कि इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड. इसी तरह से डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इन द डायग्राम हमें नजर आ रहा है ये डीएल का डायरेक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है. ओके, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पर एक काम करते हैं कि हम यहां पर डीएल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये फ्री वेक्टर है, हम इसको यहां से शिफ्ट करके यहां ला रहे हैं, और ये पोजीशन वेक्टर है, मैं इसको आगे शिफ्ट कर देता हूं. ये पोजीशन वेक्टर है. ओके, और ये डीएल वेक्टर है. अब आप ध्यान दें, दे आर इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. नाउ इफ यू प्लेस अ स्क्रू परपेंडिकुलर टू इट एंड इफ यू रोटेट इट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इस क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? डीएल. यानी इसको अगर हम रोटेट करें इन दिस डायरेक्शन, दैट स्क्रू विल मूव इन इनवर्ड डायरेक्शन. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. Okay, in this way we can use right hand screw rule to find the direction of magnetic field intensity at any point. तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इन नेक्स्ट वीडियो we will take application part of Biot-Savart's law. Thank you.